مریم نواز شریف کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ شہباز شریف جس طرح سے بات کرنا چاہتے تھے اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ نون لیگ کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب ایک پیج نہیں رہا، 2-3 پیج بن چکے ہیں۔ نائب صدر نون لیگ نے صاف کہہ دیا، مریم نواز کا مکمل انٹرویو آج شام 7 بجے نیوز کے پروگرام سیدھی بات بنش سلیم کے ساتھ میں نشر ہوگا۔ کردو سے گلگت تک اور گلگت سے آدستور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے۔ آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وقتو وقتو۔ یہ حکمران جیسے آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ شیروں کی سرزمین پر کوئی گیدڑ حکومت نہیں کر سکتا۔ سرکار نے دھاندلی کی کوشش کی تو عوام پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز کا اسٹور میں جلسے سے خطاب۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں گو نیازی گو کا نعرہ لگ چکا، اس حکومت کو جانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران کا بنانا شروع ہوا ہے۔ عمران نہ صرف سلیکٹڈ ہے، اب تو وہ عبوری وزیر اعظم ہے۔ عمران خان عبوری وزیر اعظم ہیں، عبوری صوبہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا سوال۔ جنوری کے بعد پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو کا دعویٰ، پاکستان میں بعض عناصر علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نگر میں خطاب۔ لندن بیٹھا شخص کہتا ہے کیوں نکالا؟ سرداری کا بیٹا بھی روتا پھر رہا ہے۔ مراد سعید کی اپوزیشن پر چڑھائی، وفاقی وزیر کا خطاب، بولے کہ گلگت بلتستان میں جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے پی ایس پی کو الیکشن ہرایا گیا۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے آرمی چیف مدد کریں۔ 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج محض تقریر اور کاغذ تک محدود ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ نیب کیسز میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کمر میں درد، بختر بند گاڑی میں کوٹ لگ پر جیل سے اسپتال لایا گیا۔ سی ٹی اسکین سمیت مختلف ٹیسٹ ہونے کے بعد واپس جیل پہنچا دیا گیا۔ شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے، ایاز صادق کی گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ پاک فوج نے آئی جی سندھ کے تحفظات پر کراچی واقعے کی تحقیقات مکمل کر دیں۔ سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ ضابطے کی خلاف ورزی پر افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں ہوگی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افسران پر قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے عوام کا شدید دباؤ تھا۔ کراچی واقعے پر آفیسرز نے شدید عوامی رد عمل کے پیش نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو ناکافی اور سست روی کا شکار پایا۔ کشیدہ مگر پراشتعال صورتحال پر قابو پانے کے لیے افسران نے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ آئی ایس پی آر کا بیان۔ آئی جی سندھ واقعہ بلاول بھٹو کا انکوائری اور ایکشن پر خیر مقدم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ رپورٹ حوصلہ افزا ہے، اس قسم کے اقدام سے اداروں کی ساکھ بلند ہوتی ہے۔ کراچی واقعے کی رپورٹ، پاک فوج نے بہترین اقدام اٹھایا، خود احتسابی کے نظام کو سراہتے ہیں۔ واقعے سے وفاقی حکومت کا تعلق نہیں، سندھ حکومت کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے سابقہ ایم پی اے رضوان گل کو گرفتار کر لیا۔ ساتھی ملزمان کے ساتھ مل کر جعلی مختار نامہ اور رجسٹری بنا کر 11 کنال 12 مرلے رقبہ اپنے نام ٹرانسفر کرانے کا الزام۔ The illicit movement of money from developing world to offshore bank accounts to rich countries, which is devastating the developing world.
मजहब दुश्मनों को कप्तान का खुला पैगाम। आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन मजहब को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर तवज्जो दे। रूसी सदर पुतिन की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, शुरका को अच्छी खबर भी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहिरियान भी हमरा आज सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हर्फ नहीं आने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से तौहीन रिसालत रोकने के लिए कानून साजी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब कर दिया। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतल्लिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। LNG की दरामद से मुतल्लिक फैसले पर गौर होगा। कंपटीशन कमीशन ने 84 शुगर मिलें कार्टेलाइजेशन में मुलव्विस करार दे दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन फ्रंट रनर की हैसियत से काम करने का इंकशाफ। 2010 से सरगर्मियां जारी थी। सीनियर ऑफिशियल के दरमियान ईमेल के तबादले का सुराग भी मिल गया। शुगर मिलों ने एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म हसास तिजारती फैसलों के लिए भी इस्तेमाल किया। वफाकी काबीना ने गंदम की फी मन कीमत 1650 रुपये मुकर्रर कर दी। सिंध हुकूमत लोगों को आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज साहब, आपके सॉफ्टवेयर में सिंध की गंदम फंस गई है। आटा जादूगरी करके पंजाब में गंदम गायब करने के बायस हुआ। PTI की गलत पॉलिसियों से महंगाई का सुनामी आ गया। वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह का जवाब। 708 केसेस रिपोर्ट। लाहौर के 15, मुल्तान के 5 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल गोट में कोरोना केसेस रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। कराची सर्कुलर रेलवे बहाल। ट्रेन पहले मरहले में 16 नवंबर से लांडी से औरंगी तक चलेगी। हर रोज़ 4 ट्रेनें पिपरी से 4 औरंगी से रवाना हुआ करेंगी। 7 किलोमीटर का किराया सिर्फ 50 रुपये होगा। नौमुंतखब सदर जो बाइडन से आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राबते। बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर की जो बाइडन को जीत पर मुबारकबाद। जो बाइडन ने यूरोपीय रहनुमाओं से कोरोना और आलमी माहौल पर गुफ्तगू की। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का शिकस्त तस्लीम न करना शर्मनाक है। सरगोदा में अलीपुर सैयदा रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम। सिविल जज मलिकवाल अहलिया समेत शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। सिविल जज मोहम्मद अकरम समंदरी से मलिकवाल जा रहे थे। कार हादसे में सिविल जज के 3 बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मौसम करवट बदलने के लिए तैयार। हफ्ते से पीर तक लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। और मवासलात के मैदान में अहम संगे मील। अमेरिका में हाइपर लूप कैप्सूल के जरिए सफर का कामयाब तजुर्बा। मकनातीसी मैदान की सुरंग में 172 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया।
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। कहती हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह से बात करना चाहते थे उस तरह से बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के अंदाज में बात करने की कोशिश भी की गई। मैं तो बात करने के हक़ में भी नहीं हूँ। शहबाज शरीफ की तरह से बात करने को कमज़ोरी समझा जाता है। अब एक पेज नहीं रहा, 2-3 पेज बन चुके हैं। हम PDM जमातों से तवक्को नहीं करते कि वो हमारा बयानिया लेकर चलें। हमारे बयानिया का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं। PTI से मिलकर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखते हैं पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें जीत पाती है। मरियम नवाज का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 7 बजे न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात दिनेश सलीम के साथ में नशर होगा। कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी तो बात हो सकती है, मिल बैठकर भी बात हो सकती है, या शायद उस तरीके से बात हो सकती है जिस तरह से शहबाज शरीफ चाहते थे कि बात हो। ये भी तो एक तरीका है सच कहने का। उस तरह से बात नहीं हो सकती, उस तरह से वो उसको कमज़ोरी लिया जाता है। और अब उस तरह से बात करने की कोशिश की गई, मैं तो वैसे बात करने के हक़ में नहीं है। इस जाली हुकूमत को ना एक्सेप्ट करती हूँ, ना इसके साथ बात करने पे तैयार हूँ। 2-3 पेजेस तक बात आ गई है। तो इमरान खान साहब और PTI जो है, आप उसको एक ये पेज से हटाएं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के हमारे बाकी सियासी पार्टियों के और अवाम के हवाले करें, तो ये तो एक दिन में हुकूमत घर जाएगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी देखते हैं कितनी सीट्स लेती है, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला कितनी सीट्स लेती है, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो दोनों पार्टीज़ आपस में बैठेंगी। लेकिन अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करती हैं, PTI जीत भी जाए, तो ऐसी जाली हुकूमत को के साथ मिलके हुकूमत बनाने में हम हुकूमत ना बनाना और अपोजिशन में बैठना मंजूर करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसका जो बोझ उठाना है वो सबके बस की बात नहीं है, और ना हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब उस बोझ को अपने सर पे लाद के फिरेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी